Okay friends, welcome again to another lecture of mathematics. I am Dheeraj Bora from SGCA, welcoming you all for this lecture. हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? We are doing the sequence and series. उसमें अपन एक्सरसाइज नंबर 4.5 कर रहे हैं बेटा. उसके पहले 4 एग्जाम्पल्स अपने पूरे हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग फॉर द 5th one. ओके बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट विद द 5th one. 5 into 7. The 5th one, 5 into 7 plus क्या है बेटा आगे 9 into 11, उसके बाद 11 into 13, ओके एंड अप टू कितने बेटा n terms. ओके बेटा, बी वेरी केयरफुल विद दिस प्रॉब्लम. अगर कोई टेंशन है बिंदास्त पूछो बेटा, राइट? ओके, सो देखो बेटा, अभी ये जो है ना ये सीरीज, इसके सिर्फ पहले वाले टर्म्स की तरफ ध्यान दो. 5, 9, 11. व्हाट डू यू नोटिस? द फर्स्ट टर्म्स आर व्हाट बेटा? इन एपी. एपी है कि नहीं बेटा? 5 है, 7 है. With the first term as 5 and the common difference कितना है बेटा? Common difference is 4, right friends? Okay, now in that case अपन क्या करेंगे? We can find the nth term. Therefore nth term of this sequence क्या है बेटा? We know the formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d, right? Okay, so the nth term will be a कितना है अपना? 5 plus n minus 1 and what is your d? d is 4, correct friends? Okay, now we can simplify this. 5 plus 4n minus 4, right? तो ये कितना आएगा बेटा? 4n plus 1. So the nth term will be 4n plus 1. Agreed ना बेटा? Okay. In fact उसने nth term भी दिया था. Okay. Now the second series. अभी अपन दूसरी वाली sequence देखेंगे बेटा, which is the second sequence. देखो बेटा, इसमें है 7, 11, 13 up to n terms. We can see that this is also a AP with the first term as 7 and the common difference again as 4. Okay, so we can write here the second terms are in AP with the first term A as कितना बेटा? 7 and the common difference D as 4. Again the common difference is 4, right friends? Okay, now इसका nth term क्या आएगा? देखो बेटा, इसका nth term क्या आएगा? a plus n minus 1 into d, right? Okay, तो यहां पर tn कितना आएगा बेटा? What is your a? a is 7, n minus 1 and d is 4 again, correct? Okay, so Tn will be क्या रहेगा बेटा? Tn 7 plus 4n minus 4. So your nth term will be 4n plus 3. nth term क्या रहेगा बेटा? 4n plus 3, करेक्ट? ओके, सो अपना जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या आएगा बेटा? nth term तक अगर अपन लिखेंगे तो व्हाट वी गेट? इट इज 5 into 7 plus 7 into in fact 9 into 11. ओके, प्लस कितना बेटा? 11 into 13 plus 9 into plus 11 into 13. Okay, up to n terms, right friends? Okay, I think there is a mistake out here in the problem.
the terms are not written in a AP. ओके बेटा, तो इसको we have to adjust. ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, there is a mistake in it. There is a mistake. Now actually what the mistake is, हम लोग देखेंगे बेटा. We got a 5, 9, 11. It is not, and 7, 11, and 13. That is also not in a AP. Okay, there is a mistake for sure. Let me check about that mistake. Okay, हम लोग इसको बाद में करेंगे बेटा. We will see it. I'll check the mistake and then we will solve it. There is a mistake in the problem, that is for sure. Till that we go for the sixth one. I'm sorry for that, but there is a mistake in the textbook. Find the sum of 2 square, 4 square, 6 square, 8 square up to n terms. Up to n terms. Now देखो बेटा, यहाँ पर दे हैव गिवन इट करेक्टली. 7, 11 एंड 15 यहाँ पर उसने दिया है बेटा, करेक्टली दिया है. 5, 9, 13. ओके, यहाँ पर गलत हुआ है. द थर्ड टर्म गलत है बेटा. द थर्ड टर्म इज 13 into 15. आई एम सॉरी, मेरे टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है बेटा. यहाँ पर उसने सही दिया हुआ है, तो वी विल डू इट. देखो बेटा, 5, 9, 13 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 15. ओके, सो अब अपना जो है वो सही है, बाकी एवरीथिंग इज ओके. सो योर nth टर्म क्या आएगा? देखो बेटा, अभी अपना nth टर्म, ये इसको अपन खत्म करेंगे बेटा. 5 into 7 प्लस 9 into 11 प्लस 13 into 15 अप टू nth टर्म. अभी nth टर्म क्या है? देखो बेटा, इट इज 4n plus 1 and 4n plus 3. राइट बेटा, it is 4n plus 1 and 4n plus 3. correct? okay, तो we can find out ये क्या आएगा. but it is a summation r is 1 to n of what बेटा? 4r plus 1 into 4r plus 3. correct? okay, अब इसको कैसे करेंगे बेटा? yes, we'll have to multiply this. r is 1 to n of, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r square प्लस 12r प्लस 4r प्लस 3. करेक्ट? ओके, तो ये कितना आएगा? देखो बेटा, r is 1 to n, 16r square प्लस 16r प्लस 3. करेक्ट? तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड इट. अब इसका अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं बेटा. राइट? ओके, तो ये कितना आएगा बेटा? समेशन r is 1 to n of 16r स्क्वायर. सबका समेशन क्या करते बेटा? अपन सेपरेट करते, याद है ना आपको? यस, प्लस समेशन ऑफ 3 r is 1 to n. अब क्या करेंगे अपन? सारे कांस्टेंट्स को बाहर निकालेंगे. तो 16 बाहर, समेशन r is 1 to n of r स्क्वायर. इसमें कुछ बाहर लेने की जरूरत नहीं है, 1 ही बाहर आएगा, प्लस r. ओके, इट इज 16r. गलत लिखा है बेटा अपन ने. 16r प्लस 3 को बाहर लेंगे अपन, r is 1 to n of 1. तो अभी आपने को पता है बेटा, समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या है बेटा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये 16 तो है ही बेटा, प्लस 16 समेशन ऑफ r कितना है बेटा? n प्लस 1 अपॉन 2 एंड समेशन ऑफ 1 कितना है? n. so this completes this. correct? okay, now how do we do it? इसको कैसे कर सकते बेटा? we can find n as common. 16 को अंदर लेंगे बेटा, 6 तो है ही, इसको अभी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे. कितना है बेटा? 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1. ओके, और अभी यहां पर n तो अपना बाहर कॉमन गया हुआ है, n प्लस 1 है. 16 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1
प्लस n तो बाहर गया है बेटा, तो सिर्फ 3 आएगा. 2 8 आर. करेक्ट फ्रेंड्स? ओके. ना ये आएगा n, ये आएगा 8/3. 8/3 इंटू ये कितना है बेटा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 3. करेक्ट? ओके. n/3 सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा. तो यहां पर तो 8 से करना पड़ेगा. 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8 प्लस इसको अगर 3 से किया तो 24n और ये कितना है 8 प्लस 3 11 इंटू 3 इज 33. ओके. सो इस तरीके से ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा. ना n/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 16n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 33 प्लस 8 कितना आएगा बेटा, 41. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके. अब कुछ लोग है ना इसके भी फैक्टर्स करते हैं, हम लोग इसके फैक्टर्स करने वाले नहीं है. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई गिव यू सम टाइम टू गैदर इट. आपको मैं पूरा प्रॉब्लम एक साथ बताता हूं बेटा. ओके. और फिर आफ्टर 10 seconds वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Done beta? Okay, so let's move on to the next problem, that is problem number 6. Let us see what the sixth one says. Find the sum 2 square 4 square 6 square. Hi Syed. 2 square 4 square 6 square 8 square up to n terms. 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square up to n term. ओके बेटा. ओके. तो ये क्या हुआ है बेटा, ये क्या है, ये 2 4 6 8 इस तरह से है बेटा. राइट? मतलब दिस इज अ AP. This is a AP with the first term as 2 and the common difference कितना है बेटा, common difference भी 2 है. करेक्ट? राइट? ओके. तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन, we can write it as what बेटा, R is summation of R is 1, R is 2 से शुरू होता है बेटा. summation of R स्क्वायर है बेटा. R is 2 से लेके कितना बेटा, 2 से लेके n तक, 2 से लेके n तक. सो अभी देखो बेटा, नाउ बिकॉज देयर आर n टर्म्स, बिकॉज देयर आर n टर्म्स और ये क्या है, डबल है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट इट एज R is 1 से लेके कितना n टर्म्स है, 1 से लेके n तक ऑफ कितना बेटा, 2r का स्क्वायर ले सकते हैं बेटा अपन, 2r का स्क्वायर. करेक्ट ना बेटा? 2r का स्क्वायर मतलब दिस इज समेशन R is 1 to n ऑफ 4r स्क्वायर. 4 को बाहर लेंगे बेटा अपन, समेशन R is 1 to n ऑफ r स्क्वायर. 4r स्क्वायर का समेशन तो पता है बेटा अपने को, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. 2 2 जार 2 3 जार. हो गया बेटा प्रॉब्लम. इसको इसी तरह से सॉल्व रख सकते हैं. वी डोंट इवन नीड टू मल्टीप्लाई दिस. n प्लस 1 2n प्लस 1. ओके फ्रेंड्स, इतना आसान है बेटा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 7th वन. अब 7th वन में देखो बेटा क्या है.
फाइंड 7th वन देखो बेटा, फाइंड 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, कितना है बेटा? 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। ओके, उसके बाद 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर अप टू कहां तक है बेटा? देखो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखो बेटा, वी विल टेम्प्टेड टू यूज 70 माइनस 69 68 67 सब लाइन में है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपन, लेकिन ऐसा अपन लिख नहीं सकते। वाई? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अगर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बिकॉज दिस इज माइनस, अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने को इसको करना पड़ेगा, पहले सारे टर्म्स लेंगे अपन, 70 स्क्वायर 68 स्क्वायर 66 स्क्वायर प्लस कहां तक बेटा? 2 स्क्वायर तक, मतलब सारे इवन नंबर्स और सारे ऑड नंबर्स इधर आएंगे बेटा। तो बीच में क्या आएगा बेटा? माइनस साइन सब में से अपन कॉमन लेंगे। 69 स्क्वायर 67 स्क्वायर, कौन से टर्म्स ले रहे बेटा अपन? 69 स्क्वायर 67 स्क्वायर 65 स्क्वायर, और माइनस का प्लस क्यों हुआ? बिकॉज माइनस साइन अपन ने कॉमन ले लिया है। प्लस अब तो कितना बेटा? 1 स्क्वायर, राइट बेटा? ओके, सो दैट कंप्लीट्स दिस। अभी इसको अपने को लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर। देखो बेटा, ये 2 से लेके 70 तक है, तो कितने टर्म्स आएंगे? देयर विल बी 35 टर्म्स। सो समेशन आर इज 1 से लेके कितना बेटा? 35 टर्म्स है ना बेटा, ऑल इवन नंबर्स। और क्या है बेटा? 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस अभी ये देखो बेटा समेशन, अभी r 1 से लेके 69 तक है, अगेन 35 टर्म्स है, अगेन 35 टर्म्स, और ये कितना आएगा बेटा? 2r माइनस 1। क्यों बेटा? बिकॉज दे आर ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को कैसे लिखते बेटा अपन? 2r माइनस 1 से, करेक्ट? अभी इसमें 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, अगर r को 2 डालेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, एंड सो ऑन। 35 डालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 35 इंटू 2 इज 70 माइनस 1, करेक्ट? तो इट विल बी 2r माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों भी देखो बेटा 1 to 35 है, तो वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। समेशन r इज 1 से लेके 35 ऑफ, ये कितना आएगा बेटा? 4r स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 है ना बेटा, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस विल बी समेशन ऑफ r इज 1 से लेके 35 तक, 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 8r स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r इज 1 से लेके 35 किसका बेटा? 4r का, प्लस समेशन ऑफ 1 r इज 1 से लेके कितना? 35, राइट बेटा? ओके, तो 8 को बाहर लेंगे, समेशन r इज 1 से लेके 35 ऑफ r स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35, 4 को बाहर, प्लस समेशन ऑफ r इज 1 से लेके 35 ऑफ 1, तो कितना आएगा बेटा? ये 8 r स्क्वायर है, मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट r टर्म माइनस 4 इंटू r का क्या है बेटा? n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का समेशन इज 30, n का 1 का समेशन इज n। ओके, नाउ वी कैन पुट r n की जगह क्या आएगा बेटा? 35। सो एज n इज 35, अपन क्या डालेंगे बेटा? 8, 35 इंटू 36 इंटू 2n प्लस 1, मतलब 2 इंटू 35, 2 इंटू 35 दैट इज 70 प्लस 1 अपॉन 6, 4 इंटू 35 इंटू 36 अपॉन 2 प्लस कितना? 35। नो इसको अपन उड़ा देंगे, 8 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 71 अपॉन 6
प्लस 8 टू द 16 इंटू 35 इंटू 36 अपॉन कुछ नहीं है प्लस 35 इंटू कितना बेटा 8, 35 इंटू 8। इनफैक्ट 8 अंदर नहीं लेना चाहिए था अपन ने, कोई बात नहीं। 8 इंटू 35 को अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, 8 इंटू 35, ये 8 इंटू 35 को अपन कॉमन ले सकते बेटा। ओके, टू मेक द मल्टीप्लीकेशन इजियर। अब ये कितना है मेरा 36 इंटू 71 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 36 प्लस 1, 6 6 36 आ जाएगा बेटा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हुआ ना, राइट। अभी ये 240 एंड 40 280 करेक्ट ना बेटा। 35 इंटू 8 70 इंटू 4। ओके, ये कितना आएगा 7 6 42 426 प्लस 72 प्लस 1। देखो बेटा काफी आसान हो गया है। हेलो बेटा ओम, 280 ये कितना आएगा बेटा 73 जब ऐड करेंगे 499 आएगा बेटा। ओके, तो ये कितना आएगा 500 इंटू 280 मतलब 280001400 माइनस 280 मतलब 13720। आंसर कितना आएगा बेटा 13720। इस तरीके से अपन ये कंप्लीट कर लेंगे बेटा, राइट फ्रेंड्स। ओके, I hope you are getting it. For all those who are joining these lectures, HGCA की जो लेक्चर थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा, उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर्स जो प्रीवियस हो गए बेटा। आई थिंक देयर आर 46 लेक्चर्स इसके पहले, टुडे इज द 47th लेक्चर। सारे लेक्चर आपको यस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यू वॉच देम करेक्ट और समझ के लो। टुडे विल कंप्लीट दिस चैप्टर दैट इज द सीक्वेंस एंड सीरीज एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट्स। चैप्टर 1 का आई गिव यू द चैप्टर नंबर ऑल्सो, चैप्टर 7 ऑफ पार्ट 1 दैट इज लिमिट्स। ये बच्चों ने स्पेशल डिमांड किया है बेटा, तो उसके लिए मैं ये कल स्टार्ट करने वाला हूं। सो प्लीज सारी तरफ फैला दो बेटा कि टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट्स। डोंट मिस दैट चैप्टर बेटा। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर वो समझ गया, यस ओम लिमिट्स, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट्स। ओम, आई थिंक ओम आपने ही रिक्वेस्ट किया था ये शायद, आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक। तो प्लीज कल उसको ज्वाइन हो जाओ एंड आज पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में नहीं आया ना बेटा, प्लीज गिव अ कमेंट देन एंड देयर, मैं वापस बताऊंगा बेटा। बिल्कुल शर्माना नहीं है और घबराना तो नहीं ही है। लेट अस स्टार्ट विद द 8th one. Find the sum 135 357 579 अप टू, देखो बेटा nth टर्म उसने ऑलरेडी दिया है, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। 135 का nth टर्म 2n-1 आता है, इसका 2n+1 आता है और इसका 2n+3 आता है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ लेंदी कैलकुलेशन से, बाकी कुछ नहीं है। राइट फ्रेंड्स? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, द 8th one. 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9. Okay, 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. Right friends? Okay, so अपने क्या करना है बेटा, summation r is 1 to n of 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3. We just have to multiply this 3 brackets पहले, क्योंकि इसको सेपरेट नहीं कर सकते मल्टीप्लीकेशन में। कर सकते क्या बेटा? नहीं कर सकते। Therefore अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तीनों ब्रैकेट एक साथ तो कर नहीं सकते, दो ब्रैकेट करेंगे बेटा। 2n minus 1, 2n plus 1, a plus b,
a minus b will give you a square minus b square. 4n square minus 1, correct, multiplied by 2n plus 3, correct. ओके, तो ये आएगा समेशन r इज 1 to n. इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3. ओके बेटा, तो समेशन r इज 1 to n ऑफ 8n क्यूब, सारे टर्म्स अलग अलग ही है तो वापस करने की जरूरत ही नहीं है. 8n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3. ओके, अब आराम से इसको अपन करके लेंगे. कैसा? समेशन r इज 1 to n ऑफ n क्यूब, 8 को अपन निकालेंगे बाहर, प्लस 12 को बाहर लेंगे. समेशन r इज 1 से लेके n तक ऑफ n स्क्वायर माइनस 2. समेशन r is 1 to n of n square minus 3. Summation r is 1 to n of 1. 8. अब summation of n cube formula याद है ना बेटा? Okay. n plus 1 upon 2 the same as what बेटा? Summation of n, लेकिन उसका square. n square का भी फॉर्मूला आपको पता है बेटा, n plus 1 2n plus 1 upon 6, राइट ना बेटा? ओके, माइनस 2, यहां पर n है बेटा, मैंने n स्क्वायर लिख दिया है गलती से. n का समेशन क्या है बेटा? n plus 1 upon 2 एंड फाइनली 3. 1 का समेशन n. थोड़ा सा यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन. 6 2 12, 2 गेट्स कैंसल. ओके बेटा, अब देखो बेटा 8 ना, ये क्या है बेटा? n स्क्वायर अपॉन 4 n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अभी यहां पर देखो बेटा 2n n plus 1 2n plus 1, okay, minus n plus 1 minus 3n, correct. Okay, now what we can do, we can, yes, simplify the brackets. 8, ये n स्क्वायर आएगा बेटा, ये आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. ये कितना आएगा देखो बेटा? 2n, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है बेटा? 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n. ओके, इसका क्या है बेटा? अपॉन 4. 8, अगर n स्क्वायर अंदर ले ले, n रेज़ टू 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर. अभी ये देखो बेटा, अपन कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे 4, मतलब we'll have to multiply this by 4, या तो फिर ओके 8n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1. अभी ये कितना आएगा देखो बेटा? माइनस 4n स्क्वायर, माइनस 4n इंटू 4 माइनस 16n, करेक्ट. 8 अपॉन 4, अभी ये n रेज़ टू 4 अकेला ही है, प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 16n क्यूब प्लस 24n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 16n. ये 2, अभी देखो बेटा n रेज़ टू 4, अब 2n क्यूब 16n क्यूब 18n क्यूब. ओके, अब ये n स्क्वायर 24n स्क्वायर मतलब 25n स्क्वायर माइनस 4 मतलब 21n स्क्वायर. ओके, और ये कितना है देखो? प्लस 8n माइनस 16n माइनस 8n. ओके फ्रेंड्स, अब
इसके फैक्टर्स कर सकते इफ वी वांट, लेकिन अपन करने वाले नहीं है. वी आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज. वी आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज. दिस इज द फाइनल आंसर. राइट फ्रेंड्स? ओके, let's move on to the ninth one. Find an if. Find an if 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 up to n terms. And नीचे 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms is equal to 100 upon 3. इस पर से अपने को n find करना है बेटा. Right? Okay. So let's start with this. 1 into 2, 2 into 3 into 4, 4 into 5 up to n terms. और नीचे देखो बेटा, नीचे जो है 1 2 3 4 up to n terms again. Right? Okay. This is again up to n terms. करेक्ट. ओके, अब देखो बेटा पहले वाले टर्म्स 1 2 3 4, ये क्या है? इट इज अ एपी विथ ए इज इक्वल टू 1. ए इज इक्वल टू 1. अभी न्यूमरेटर में फर्स्ट सीरीज है, न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म्स ओनली. ए इज 1. कॉमन डिफरेंस भी कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस भी 1 है. तो nth टर्म कैसे आएगा बेटा इसका? Tn a plus n minus 1d which is equal to 1 plus n minus 1 into 1. 1 plus n minus 1, that is कितना आएगा बेटा? 1 1 कैंसिल, n आएगा. So the nth term is n. वैसे भी आपको पता है 1 2 3 up to n terms मतलब n ही आना है. ओके, नाउ न्यूमरेटर में सेकेंड टर्म जो है बेटा, सेकेंड टर्म, उसमें a2 है और d1 है. करेक्ट ना बेटा? वहां पर भी डिफरेंस 1 का ही है. 2 3 4 5. राइट? सो द nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 d. a 1 की जगह 2 आएगा, n माइनस 1 d इज 1. 2 प्लस n माइनस 1, ये कितना था बेटा? फिर n प्लस 1 आएगा. इट विल बी n प्लस 1. अब डिनोमिनेटर देखो बेटा, डिनोमिनेटर 1 2 3 अप टू n टर्म. सो द nth टर्म क्या है बेटा? अभी अभी देखा, इट इज सेम एज दिस. ये वाली सीक्वेंस जो है न्यूमरेटर में फर्स्ट वाली वही है वो. nth टर्म विल बी n. तो ये क्या आएगा बेटा? दिस इज समेशन ऑफ n n प्लस 1 अपॉन समेशन ऑफ n. करेक्ट? अपन r लेंगे बेटा, इसको अपन इसको r लेंगे. r इज 1 to n. r इज 1 to n. करेक्ट बेटा? ओके, सो ये आएगा r स्क्वायर प्लस r अपॉन नीचे क्या है? नीचे क्या है? r समेशन ऑफ r इज 1 to n समेशन r इज 1 to n. दोनों को सेपरेट लिखना कंपलसरी है बेटा. एक साथ लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है बेटा. So this will be summation of r square plus summation of r upon summation of r. ये कितना आएगा? summation of r square n, n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus summation of r कितना है बेटा? n n plus 1 upon 2. नीचे भी क्या है बेटा? n n plus 1 upon 2. अब क्या करेंगे बेटा? अपन कैंसिल करने के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 को कॉमन लेंगे. तो क्या बचेगा बेटा? 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस इधर क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2 पूरा चला गया मतलब 1. नीचे भी n प्लस 1 अपॉन 2 पूरा का पूरा चला जाएगा. दे विल गेट कैंसल. तो कितना आएगा बेटा? दिस विल बी 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 एंड ही हैज गिवन इट टू बी 100 अपॉन 3. इस पर से अपने को n फाइंड करना है. तो ये कितना आएगा बेटा? देखो 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3. 3 विल गेट कैंसल. कितना आएगा बेटा? 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 100.
2n कितना आएगा बेटा 96, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, n will be 48, so there are 48 terms. कितने टर्म्स रहेंगे बेटा 48 terms in this sequence, right friends? Okay, let's move on to the 10th one, that is the last one of this exercise. And also of this chapter. If S1, S2, S3 are the sums of the first n natural numbers, their squares and their cubes, then show that 9s2 square is equal to s3 1 plus 8s1. क्वेश्चन देख लो बेटा, S1 क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, S2 क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और S3 है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 9s2 square is equal to s3 1 plus 8s1. So let us write down the question. देखो बेटा, s1 is sum of first n natural numbers, sum of first n natural number, मतलब s1 क्या आएगा बेटा, summation r is 1 to n of r, sum of the first n natural numbers. r कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है. s2 क्या है बेटा, s2 is the sum of the squares of the first n natural numbers, मतलब summation r is 1 to n of r square. And s3 जो है वो है summation r is 1 to n of r cube, right? Now what we have to prove, we have to prove that 9s2 square is equal to s3 into bracket 1 plus 8s1. This is we have to prove. Okay, but okay, so let us start. Left hand side क्या है बेटा, 9s2 square, मतलब 9 into s2 क्या है, summation r is 1 to n of r square, which is equal to 9 multiplied by r square की वैल्यू पता है बेटा अपने को, n plus 1 2n plus 1 upon 6. So this is our RHS. If we want, we can simplify this. कैसे बेटा, 3 3s are 3 2s are, correct, 3 3s are 3 2s are, and we can multiply this n into ये कितना बेटा 2n square plus n plus 2n plus 1 कितना आएगा 3 by 2 into n 2n square plus 3n plus 1, राइट ना बेटा? अगर कोई इशू है तो बोलो मुझे. विल गो फॉर द RHS. RHS, राइट? RHS क्या है देखो बेटा, S3 into bracket 1 plus 8 S1, राइट बेटा? ओके, S3 1 plus 8 into S1. अब S3 क्या है बेटा, S3 क्या है, इट इज R cube, summation of r cube into bracket 1 plus 8 into summation of r. r कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक. ओके, तो फिर अभी इसमें क्या होगा बेटा, ये कैसे होगा, r क्यूब का समेशन कितना है, n plus 1 upon 2 उसका स्क्वायर, करेक्ट ना बेटा? ओके, नाउ हियर 1 plus 8 समेशन ऑफ r कितना है बेटा, n plus 1 upon कितना, upon 2, राइट? 2 4s are, correct? Okay, so now it will be n plus 1 upon 2 square plus ये आएगा 1 plus 4 n square plus n, correct? ओके, सो इसको क्या आएगा बेटा, n square by 4 n square plus 2n plus 1, correct? Plus 1
plus 4n square plus 4n. Correct? We can multiply this, cross multiply this by 4. ये आएगा n raised to 4 plus कितना बेटा 2n cube plus n square, right? Okay, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, it will be 4 plus 16n square plus 16n upon 4. So what we get here is n raised to 4 plus 2n cube plus 17n square plus 16n plus 4 divided by 4, right? Okay, so this is our RHS and they are not matching each other. Okay, अभी उसने क्या बोला था बेटा, S2 स्क्वायर बोला है, मतलब द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, S2 का स्क्वायर बोला है बेटा, राइट? ओके, तो ये आएगा 9/4 n स्क्वायर, अंदर कितना आएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर कितना है बेटा 4n raised to 4 प्लस 9n raised to 2 प्लस 1 प्लस कितना बेटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 4 3 12n क्यूब प्लस 6n प्लस 4n स्क्वायर. ओके बेटा, ओके, सो इट विल बी 9n स्क्वायर अपॉन 4. ये आएगा देखो 4n raised to 4 प्लस 12n क्यूब प्लस 13n square plus 6n, correct? Plus 6n plus 1, 9n square upon 4. Okay beta? Okay, now still we are not getting it as equal. Let us check it. r क्यूब का भी फॉर्मूला बराबर है 1 प्लस r का भी फॉर्मूला सही है. ओके, द राइट साइड इज ओके, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. व्हाट अबाउट द LHS? LHS देखेंगे बेटा अपन. S1 इज r स्क्वायर r क्यूब 9s2 स्क्वायर मतलब 9 इंटू समेशन ऑफ यस S2 मतलब r स्क्वायर है बराबर है बेटा टू n प्लस 1 3/2 into n. Okay, 2n square plus n plus 2n plus 1 बराबर है बेटा 2n square plus 3n plus 1. yes, करेक्ट है. उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर करना है बिकॉज 9s2 का स्क्वायर है अपने पास, राइट? ओके, सो 9/4 n स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है बेटा 4n raised to 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12n क्यूब यस प्लस 6n बराबर प्लस 4n स्क्वायर बराबर तो है. ओके ओके, इज देयर एनी सिंप्लीफिकेशन विच वी कैन डू? सिंप्लीफिकेशन के बाद तो यही आना चाहिए ना बेटा. कुछ कॉमन भी तो नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा, we'll stop here now and we'll check about this problem in the next lecture. ठीक है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपन वापस चेक करेंगे where we have done a mistake.
विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो मॉर्निंग, राइट बेटा। उसमें करेंगे अपन, क्या करेंगे बेटा अपन, लिमिट्स। उसके पहले ये सब में कोई प्रॉब्लम है तो अपन देख लेंगे बेटा। टिल देन बाय फ्रेंड्स।